आकर मां सरस्वती के समक्ष पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करें। On behalf of the Institute, I welcome our Chief Guest, Dr. V.G. Awasthi Madam, Nursing Superintendent, Datia Medical College. Madam is an inspiration for all, as the accomplishments she made are not an easy task. She has dedicated her past years to nursing service, serving the nation. We feel lucky to have you as the Chief Guest, Madam, between us. And for welcoming Madam, I would like to request our Principal, Dr. Neeta Singh Madam, to please welcome Ma'am with a token of gratitude and respect. We welcome you, ma'am. Dr. Madhusudan Yadvanshi, sir, Principal, Nursing Department, MLB Medical College, Jhansi. Sir is the young minds of today and a well-known name in the matters of academics and administration serving the nursing profession. We are extremely privileged to have you, sir, witnessing this event. And for welcoming, sir, I would like to request Registrar Dr. Akhilesh Mishra, sir, to please welcome, sir, with a token of gratitude and respect. Mrs. Deepa Mishra ma'am to welcome sir in this event. We welcome you, sir. Shri Ravindra Chaturvedi sir with this beautiful plant bouquet. Welcome you, sir, in this event. Students and most importantly all parents in this event. We welcome you all, hoping that you all will enjoy the eve. आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। स्वागत की श्रृंखला में आपके समक्ष प्रस्तुत है बीएससी नर्सिंग की छात्राओं द्वारा यह स्वागत नृत्य। Stepping ahead to the next event, the college report is like the mirror of the college. The same shows various colors of the institution. It is the proof that the entire college family is committed to all-around development of the students. And for presenting the same, we would like to welcome our principal ma'am, Dr. Neeta Singh ma'am, on the stage to present the welcome address and the progress report. Please, ma'am. Very good evening to one and all. It's a privilege to welcome our chief guest, Dr. V.G. Awasthi ma'am, Nursing Superintendent, Medical College, Datia, and Dr. Madhusudan Yadvanshi, Principal, Nursing Department, Paramedical, Jhansi, as a guest of honor.
We are very pleased to welcome all dignitaries from various fraternities. We all welcome our management, the chairman, the secretary, the treasurer, the director, the registrar, the coordinator, the principal pharmacy department, the principal education department, the principal ITI department, all teaching and non-teaching staffs, parents and dear students. Warm greetings to all of you on behalf of the management of Srimati Vidyavati Group of Institutions. We have gathered here to celebrate the lamp lighting ceremony of BSc Nursing, GNM and ANM students. This occasion is being celebrated in the remembrance of the founder of the nursing, the lady with the lamp, the Florence Nightingale. The light of a lamp symbolizes her nursing skills. She cared for her patient with devotion, love, affection and dedication. I congratulate all nursing students on this occasion. I also advise you to follow the ethics and responsibilities of the nursing profession wholeheartedly. Duty, discipline and punctuality are the footsteps you need to follow to attain perfection as a nurse. You must be faithful, devoted and dedicated towards your profession. I wish all to grow in knowledge and skills for your profession. Now the progress report of Nursing Department. The great achievement for Srimati Vidyavati College of Nursing was the approval of BSc Nursing in year 2021, which is recognized by Atal Bihari Vajpayee, Health University Lucknow and INC New Delhi. The GNM and ANM courses in Srimati Vidyavati College of Nursing has been recognized by the UP State Medical Faculty and Indian Nursing Council, New Delhi. We have attained 100% admission in all our nursing courses. The students of Srimati Vidyavati College of Nursing have good academic performance. In the year 2021 and 22, the final year batches of GNM and ANM students had scored 90 to 92% results. The students of Srimati Vidyavati College of Nursing have been going to clinical training and are experienced in handling technological instruments in Nirmal Hospital and MLB Medical College, Jhansi, with progressive innovative medicines and surgical training. They also got exposure to Civil Hospital, the Chiranji Hospital, the Sanjeevani Hospital, the Care and Cure Hospital and Upchar Hospital. They have acquired the skill to become a well-trained and dedicated nurses, which fulfills the high demand of nurses in India and far abroad. The institution provides the community exposure to its students in the area of Badagaon, Chilgaon and Babina. The institution also serves the community in these areas. Our students are also active in sports, co-curricular and extracurricular activities as our management is supportive towards the students, understanding the need of individual development in the spheres of music, drama and intellectual pursuits. We have our aim set to open MSc Nursing and post-basic BSc Nursing in near future. I thank you all for your patience and would now take a leave with extreme gratitude and admiration. Thank you. So much, ma'am. This was brief yet detailed expression. We are very pleased to welcome Dr. Sachin Mahor sir, CMS NLB Hospital. I would like to request Mr. Abhishek Ephraim sir to please welcome Dr. Sachin sir with plant bouquet. Also, we welcome you, sir, in this event and wisdom. To solemnize this, the lamp lighting ceremony is a tribute to Florence Nightingale, the lady with the lamp. This ceremony initiates students into the noble profession of nursing. The lamp lighting signifies the firm decision of the young students to be trained to care for the sick. The lamp lighting ceremony formally declares that the students' entry into the nursing profession. It is our privilege that we got this opportunity to witness the program and for which we all are gathered here.
Let's join and bring the blessings by lighting the lamp in front of Miss Florence Nightingale. So I would like to request Dr. V.G. Avasthi ma'am and Dr. Madhusudan Yaduvanshi sir, along with our principal Dr. Neeta Singh ma'am, to please light the candle in front of Miss Florence Nightingale to spread the light among our blooming students. So let's feel the grace on the ground.
आपका बहुत बहुत स्वागत है। Please come upon the stage and administer oath. To me, I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matter committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling. With loyalty, I will endeavor to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. Thank you. Thank you so much, sir. This beautiful prayer song. Rabba
धन्यवाद भैया। वंदे सिद्धेश्वरम नित्यम सत्यम शिवम च सुंदरम सर्वम खलुइदम ब्रह्म सोहम सोहम न संशय। परमाध्यक्ष माँ बीलावादिनी, कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, इस संस्था के संस्थापक और रात दिन जो इसके लिए सतत इसकी प्रगति और इन बच्चों के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना परमात्मा से करते रहते हैं, ऐसे हमारे प्रिय विद्यानिधि मिश्र जी, इस संस्था के प्रबंधक जी, मैनेजमेंट के सभी साथी, संस्था के समस्त गुरुजन, बहनें, बच्चों, वेद कहता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। आज हम जो कर रहे हैं ये वेद की उस परंपरा का अनुसरण है। हम अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर चलें। मृत्योर माँ अमृतम गमय। हम मृत्यु की ओर नहीं, अमृतत्व की ओर चलें। गलत रास्ते पर जाने वालों की मृत्यु होती है, सद्मार्ग पर चलने वाले अमर हो जाते हैं। पूरा संसार अपने लिए, पेट के लिए जी रहा है। आप भाग्यशाली हो, आपके पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए कि आप दूसरों के लिए जीने का संकल्प ले रहे हो। आपका जीवन इस संस्था से बाहर निकलते ही उन दीन दुखियों के लिए, उन कष्ट में पड़े हुए मानव के लिए, जीव के लिए, सेवा के लिए समर्पित होने वाला है, जो सृष्टि परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। आप नर में नारायण की सेवा करने का संकल्प ले रहे हैं, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। हमारे बीच इस संस्था के पूर्व कोऑर्डिनेटर जितेंद्र जी आए हैं, स्वागत, बैठिए। जितेंद्र तिवारी जी, इस संस्था के विषय में बहुत नहीं कहना, मैं सदा दूसरी जगह भी कहता रहता हूँ। बच्चों, चूँकि आप सेवा के क्षेत्र में जा रहे हो, मैं आपको ऋग्वेद की एक ऐसी रहस्यमय विधा के बारे में कहना चाहता हूँ जिसे मोटे मोटे तौर पर आप जानते हैं। हमारी जो नासिका है, नोज, अपनी अपनी नाक देखो। दोनों आँख से आपकी नाक एक साथ दिखाई दे रही है तो आप दीर्घायु हैं। अपनी अपनी आँख से दोनों आँख आदि बंद करके नाक देखो। जिसकी नाक दोनों आँख से एक साथ दिखाई दे रही है वो दीर्घायु हैं, ये वेद गारंटी देता है। वो मेधावी है, ये वेद गारंटी देता है। जिनकी नाक, नासिका एक आँख से एक बार दिखाई देती है, दूसरी आँख से दूसरी बार दिखाई देती है, वो मध्यम आयु हैं और उनकी बुद्धि भी औसत बुद्धि है। और जिनकी सुबह हम नासिका को देख करके चलते हैं, जिसकी नासिका बार बार गायब हो जाए देखने में, उस दिन समझ लो आपका एक्सीडेंट होना 100% गारंटी वाला है। कोई बड़ी दुर्घटना हमारे जीवन में होने वाली है, कोई बड़ा दुख हमारे जीवन में आने वाला है, उसकी सूचना हमारा ये शरीर, जिस शरीर विज्ञान के लिए आप तैयार हो, मैं उसका एक रहस्य बता रहा हूँ। जिस दिन नासिका थोड़ी देर दिखाई दे फिर गायब हो जाए, फिर थोड़ी देर दिखाई दे फिर गायब हो जाए, उस दिन समझ लेना कोई बड़ी विपत्ति हमारे साथ आने वाली है। हमें वो समय टाल देना चाहिए। हम ऋषि महात्मा जब चलते हैं ना तो अपनी ध्यान करते, नासिका अगर देखते हैं, नहीं दिखाई देती तो गाड़ी मोड़ देते हैं, फिर हम जाते नहीं हैं। कितना भी अर्जेंट काम हो हम कहते बस अब कल चलेंगे। आपको भी सावधान रहना है आज के बाद। आपका जीवन आपका नहीं है,
आपका जीवन समाज का है, आपके जीवन से बहुतों को जीवन दान मिलने वाला है। इसलिए अपनी जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न आप नियमित करें, नित्य करें। रोज उठ करके जब आप तैयार होते हैं 2 मिनट सीधे बैठ करके मेरुदंड सीधा करके अपनी नासिकाग्र को देखें। 2 मिनट का समय और पूरे दिन की गारंटी, ये सबको करना है। और परमात्मा से सदा प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा जितने लोगों की सेवा हो सके, मैं अपने आप को उतना ही परमात्मा का सेवक मान सकूं। ऐसा भाव हमें सदा बनाए रखना है। बहुत नहीं कहना चाहता, अभी आपके बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। मेरा आशीर्वाद है कि आप निश्चित रूप से, हमारे वेद जो कहते हैं धर्म की परिधि के ऊपर बोलते हैं। ये नहीं कहते कि हम जो बोलते हैं केवल हिंदुओं पर लागू होता है, पूरी मानव जाति के लिए लिखा गया है। वेद देवताओं तक भी लागू होते हैं। इसलिए हमको इन पंथ और धर्मों की सीमाओं से ऊपर उठ करके हर एक किसी की सेवा के लिए व्रत लेना है और इस वाक्य को सदा याद रखना है। निश्चित रूप से आप सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे और दूसरों को भी स्वस्थ करने की शक्ति प्राप्त करोगे। जय हिंद, जय भारत, जय बंदे। Jiten Tiwari sir, and I invite Mr. Rahul Katara sir to please welcome Dr. Jiten Tiwari sir. We is also called as a noble profession because nurses dedicate themselves in caring for patients for 24/7 for their entire life. Being a nurse, she plays her role in all different aspects, making the nation proud. Nurse plays an integral role in promoting health and preventing illness. It's important to acknowledge that profession has explained and in preventing illness. Nurses are working not only in hospitals but also in various parts of our society. To express the sky of unlimited ambitions of nurses, here we would like to call GNM third year students and ANM final year students for the musical role play with a visual look to how being a nurse changed in last 50 years. Take a look. पैसे करम सुनहरा, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में है, इस मिट्टी का आदर मुझ में है। मैं देशभक्त भी कर रहा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। विज्ञान में और किसान में हूँ, हर वीर में और जवान में हूँ। मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था, न ठहरा हूँ, न ठहरा था, न ठहरा हूँ। मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। इतिहास का मैं आईना हूँ,
ऐसी करंट सुनहरा, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कर रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं, मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था, न ठहरा हूं, न ठहरा था, न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा 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 हूं। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशाओं का नव निर्माण है, युवा में मायूसी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है, जन जन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है, अपनी पहचान है, अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है, हिंद के शत्रु की अब हार है, हो रहा न्याय है, बढ़ रहा जोश है, हुनर अपार है, इंडिया का शेर अब कर दहार है, स्वाभिमान से हम चल जो पड़े हैं, हर बाधा छोटी और हौसले बड़े हैं, नॉर्थ ऑफ इंडिया का संकल्प है, रुकना थमना अब न विकल्प है, जो था अब दिखना अल्प है, कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है, ऐसे सागर चांद को देख बड़े, जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है, बुंदला हाथों से जो दिखना है, जन जन का मनोबल बड़ा है, साउथ ऑफ इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है, रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है, गाँव शहर सब जुड़ रहे हैं, जैसे एक साथ हो इच्छा शक्ति है, जिद बल है देश की रग में, जैसे दया बल है, इंडिया का संकल्प है, उनका इंडिया का संकल्प है, उनका इंडिया का संकल्प है। We have opportunity to heal the mind, soul, heart and body of the patient. They may forget your name, but they will remember how you made them feel. Thank you. Thanks for this beautiful depiction of the journey of nurse, really mesmerizing act. Moving ahead, Indian culture has lived through ages. Unity in diversity is one of the major characteristics of Indian culture, which makes it unique. The culture of India consists of clothing, festival, language, religion, art, music and dance. Now I would like to call upon stage students of JNM second year to perform Marathi folk dance. Let's enjoy the color and the beat of the culture. Performance. Now I would like to call Miss Monica Joseph, student
semester to share her experience after entering this college as well as choosing this noble profession. गुड इवनिंग, मेरा नाम मोनिका जोसेफ है और मैं प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपने कॉलेज के अनुभव के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित संस्था के सभी महत्वपूर्ण सबसे पहले सदस्य, अतिथिगण एवं हमारे शिक्षकगण तथा हमारे सभी सहपाठियों का स्वागत एवं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग का एक हिस्सा समझा। मैं आज भी अपने कॉलेज के पहले दिन को याद करती हूँ। उस समय ना ही मेरे पास इतनी सद्बुद्धि थी और ना ही अपने पेशे को लेकर इतना आत्मविश्वास था। मेरा अनुभव खुशी, हर्षोल्लास, जज्बात और काम के बोझ से मिला जुला था। हमारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग के शिक्षकगण बहुत ही सभ्य, विचार तथा मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो कि हम अच्छे छात्र व छात्रा को तराशने में लगे रहते हैं। हमारी प्रधानाचार्य डॉक्टर नीता सिंह मैम, जो कि नर्सिंग के मानक को सुधारने के लिए मेहनत करती रहती हैं, जो कि हमारी गुणवत्ता शिक्षा के आधार पर कार्य करती हैं। इसी कारण हमारा श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस क्षेत्र झांसी के सबसे बेहतरीन कॉलेज में शुमार है और योग्य व क्षमता से परिपूर्ण शिक्षक तथा बेहतरीन आधारभूत संरचना और पुस्तकालय है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे कॉलेज में नैदानिक परिश्रम, जिसको कि क्लिनिकल ट्रेनिंग भी कहा जाता है, झांसी के विभिन्न अस्पतालों में कराई जाती है, जिससे कि विद्यार्थियों को अस्पतालों में कराई जाती है, जिससे कि विद्यार्थियों को अस्पतालों का अनुभव बहुमूल्य रूप से प्राप्त होता है। मैं बहुत ही गर्व से बोल सकती हूँ कि मैं अपनी BSc नर्सिंग का कोर्स संपूर्ण करके श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग की एक बहुत ही चमकती हुई छात्रा उभर कर यहाँ से विदा होंगी और अपने वांछित लक्ष्य को पूरा करूँगी। धन्यवाद। Parents are not the first rung of any ladder. They are the roots of the tree of life. One of the greatest titles in the world is parents, and one of the biggest blessings in the world is to have parents. As in this world, children are too busy with their schedule, due to which they are unable to take care of their parents, and parents are becoming burden for their children. वृद्धावस्था जीवन का ऐसा अंतिम पड़ाव है जिसमें मनुष्य को परिवार से आत्मीयता और स्नेह की आकांक्षा होती है। एक इंसान इस अवस्था में केवल अपने बच्चों के स्नेह और प्रेम पर ही अपना जीवन निर्वाह करता है, पर क्या असल जिंदगी मनुष्य को यह अवसर देती है? यह सवाल कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं, अपितु सामाजिक प्रश्न है जिसका उत्तर नई पीढ़ी को अवश्य देना होगा। शायद इस प्रश्न का उत्तर इस नाट्य में ही छुपा हुआ है, जिसे आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जीवन द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं। कहते हैं। ओ नमस्ते, मेरा नाम शारदा। जी मुझे शर्मा कहते हैं। ओ मुझे शर्मा कहते हैं। ओ नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा या नहीं। हेलो। हाँ हेलो बेटा। माँ अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बेटा तुझसे बस इतना पूछना था, तूने खाना खाया कि नहीं? माँ खाना बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर
इसने फोन। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों में। अब जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। और मैं कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पे खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ मजहब भजन कीर्तन में अपना दिल लगाइए। देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा और आपको कोई पूछता तक नहीं है। हाँ हेलो बेटा। मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं खाना बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, बहुत चल रहा हूँ आपको। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं खाना बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, बहुत चल रहा हूँ आपको। अरे रहने दीजिए, शारदा जी नहीं उठाएगा। हाँ माँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बेटा तू भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर दो फिर आता हूँ। आपको मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन मेरी बात मानिए, ये उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा। देख लीजिएगा, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। देखिए शारदा दी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन मैं जानता हूँ उस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया तो इतनी आसानी से नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ। देख लीजिएगा, वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। हेलो। हाँ बेटा सुन, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ, वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो मैं ये कह रहा था कि माँ आप और कुछ दिन वहाँ मैनेज कर लो। मैं बहुत चल रहा हूँ आपको, ठीक है माँ?
लो, एक गया नहीं, ये कहाँ गया? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ बस 7-1 दिन के लिए आया हूँ। मैं बस 7-1 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है। तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। इस नाटक का माध्यम केवल यही था कि बच्चे अपने क्या माता पिता इसलिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि कल को आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ कर आएँ। क्या कब से इतने स्वार्थी हुए हैं इंसान? अच्छा, सभी से पूछूंगा तो सभी कहेंगे कि हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ेंगे। और तो फिर वृद्धाश्रम में कैसे पहुंच जाते हैं माता पिता जब कोई छोड़ता नहीं है? कोई छोड़ता नहीं है तो कैसे पहुंच जाते हैं? इतने स्वार्थी मत बनिए कि जो आपको पाल पोस रहा है, आपको बड़ा कर रहा है, आप उसे वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में छोड़ा। एक शायरी कहूँगा, गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूँ मगर सफ़र पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो मोहब्बत की जरा रखना, बिना परिंदों के कोई सजर पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है और भगवान की मूरत भी सुंदर है। जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। Very emotional and sensible act it was. Thank you students for the act. Moving ahead. We dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fear, we dance for hopes, we dance for screams. Dancers create the dreams. And now to accelerate your core rhythm, presenting before you Miss Nancy Chaurasia of A&M final year with a beautiful folk dance.
life is an important part of a student's growing years. Sports and academics contribute very positive to a child's physical and mental growth. To encourage the students, we celebrate sports event, cultural events, and in this year at 2022, we have celebrated sports event in Srimati Vidyavati College of Nursing from 27th December to 29th December. Students participated in various sports events. Also, to assess the academic excellence of students in their pre-training period, we organized PTS examination in which students performed very well. For awarding prizes to the winning students, I invite Honorable Chairman Sir, Secretary Sir and Treasurer Sir on the stage to please give away the prizes to our students. Please, sir. So, we have selected some of the sports events. The third position was awarded by Deepak Rajput, GNM first year. The second position was awarded to Tilak Ram, GNM second year. The third position was awarded to Shivam, BSc Nursing first semester. Was awarded to Pooja, GNM first year. Pooja Naharia, GNM position was awarded to Shifa, GNM first year. First year. Rajput, GNM first year. Dinesh Shah, GNM first year. And the first position was held by Shivam again. In the girls was held by Diksha Raja, GNM first year. जिसने जैवलिन थ्रो में सेकंड पोजीशन प्राप्त किया था, श्री तोमर, GNM फर्स्ट ईयर, जिसने जैवलिन थ्रो में थर्ड पोजीशन प्राप्त किया। प्रियंका श्रीवास, BSc नर्सिंग थर्ड ईयर, जिसने जैवलिन थ्रो कर रही। अंजलि, BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। Event winners. Here, Miss Suman has holded this prize. She has gotten some piece of work. And in ALM first year, I would like to invite Miss Suman. Congratulations to all the winners. Thank you so much, ma'am. Shri Hariom Pathak sir, Chairman, Vidyanidhi Mishra sir, respected Principal Dr. Neeta Singh ma'am, विद्यावती कॉलेज एंड स्कूल ऑफ नर्सिंग, और मंचासीन सभी अतिथिगण, सारी फैकल्टीज और डियर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और इस कॉलेज प्रशासन का स्वागत करती हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ उपस्थित होकर 2 शब्द आप लोगों के लिए कहने के लिए बोला है। तो मेरा सभी बच्चों से, जो कि चूँकि मुख्य अतिथि शायद मैं आज यहाँ नहीं हूँ, आप लोग यहाँ के मुख्य अतिथि हैं क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, तो एक जोरदार तालियां अपने खुद के लिए आप बजाइए, जिससे पता चले कि हाँ आप यहाँ उपस्थित हैं, ठीक है। और दूसरी ताली आप अपने कॉलेज प्रशासन, अपनी नीता मैडम के लिए और अपनी फैकल्टीज के लिए, और तीसरी ताली मेरे और मधुसूदन सर और सभी उपस्थित अतिथियों के लिए। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगी या आपसे ये कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग इस प्रोफेशन में आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने अपने मन से चूज़ करा होगा, बहुत अपने माता पिता के और पेरेंट्स के दबाव के कारण आए होंगे, लेकिन जिस किसी ने भी ये प्रोफेशन चूज़ करा है ना, अब आप इस प्रोफेशन में आ चुके हैं, तो अब आपको इस प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन करना है।
जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का विजन था उस पे अपन को चलना है और उसे साकार करना है। तो उसके लिए आपको 3 चीजें याद रखना पड़ेगा। 3 C, कंपनसेशन, कंपैशन, कमिटमेंट एंड कॉम्पिटेंट। सो फर्स्ट C, कंपैशन। क्या होता है? जब हम किसी को पेन में देखते हैं, किसी को दर्द में देखते हैं, तो उस दर्द का एहसास हमें खुद भी होना चाहिए कि हाँ, वो सामने वाला दर्द में है तो हम उसके दर्द को कैसे दूर करें। ठीक है, उसके लिए आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। दूसरा C, आपका कमिटमेंट। आपका कमिटमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी अपने प्रोफेशन के प्रति। ठीक है, आपको अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पूरा करना है। और तीसरा C, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट आप कैसे होंगे? जब आपके पास अपना खुद का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगा। जब तक आपके पास अपने पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप अपने आप को अपने नर्सिंग फील्ड में नहीं स्थापित कर पाओगे, है ना। तो आपको अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है। डे टू डे जो वो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू रिसर्च हो रहे हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, देन अब आप इस फील्ड में आए हैं तो आपको सब एक अपने पास आपको एक कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि हाँ, आप वार्ड में गए तो ये नहीं सोचिए कि अगर पेशेंट के पास में ट्रॉली को लेके जाना है तो मैं क्यों ये काम करूं, है ना। एक प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए। आप अपने काम के लिए, काम के प्रति सजग होना चाहिए और उस अप्रोच के लिए तैयार होना चाहिए आपको कि नहीं, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ और मुझे ये करना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक लाइन बोलना चाहती हूँ। सेव 1 लाइफ यू आर ए हीरो, सेव 100 लाइफ यू आर ए नर्स। अपने प्रोफेशन पे गर्व करिए कि आप नर्सिंग प्रोफेशन में हैं और इस बात पे गर्व करिए कि आप झांसी में हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं अब मंच पर जिला जन कल्याण महासमिति के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र तिवारी सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं यह बता देना चाहती हूँ कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छता अभियान, कचरा प्रबंधन इत्यादि में जन जन में जागरूकता हेतु इनके द्वारा बहुत ही इफेक्टिव कदम उठाया जा रहा है। प्लीज सर। थैंक यू। श्रीमती विद्यावती, बजाओ ताली, बजा लो कुछ। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में लैंप लाइटिंग के अवसर पर हमारे बीच में परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय महानगर धर्माचार्य आदरणीय पंडित हरिओम पाठक गुरुजी, इस संस्था के चेयरमैन श्री विद्यानिधि मिश्र जी, सेक्रेटरी श्री मानस मिश्रा जी, हमारे बीच में ट्रेजरार के रूप में श्री चतुर्वेदी जी, जिन्हें के सर के नाम से जाना जाता है, हमारे बीच में बैठे डॉक्टर साहब, मैम, पांचाल जी, थाना अध्यक्ष बड़ा गांव, मेरे प्रिय बच्चों, नर्सिंग की प्रिंसिपल डॉक्टर नीता सिंह जी, सभी फैकल्टी और तमाम कर्मचारी अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कार्यक्रम में करीब 20-25 मिनट लेट पहुँचा। हो सकता है आप लोगों ने नोटिस नहीं किया हो पांचाल जी, लेकिन चेयरमैन साहब ने 100% नोटिस किया होगा। बड़ी बारीकी से चेयरमैन साहब नोटिस करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, चूँकि मैंने यहाँ 10-12 साल काम किया है और 10-12 साल काम करने का नतीजा है कि अभी कोई 5 मिनट भी लेट आए तो सर जो है 1 महीने बाद उसे याद दिलाते हैं कि उस दिन तुम लेट आए थे। तो जो है क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने बारे में परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी, एक संस्था है हमारी NGO, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हम लोग स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण में
काम कर रहे हैं। रितु मैडम बैठी हैं, जानती हैं इस बात को। काम हमारे लिए बजा रहे हैं कि रितु मैडम के लिए? किसके लिए थालियां बजा रहे हैं? अच्छा, रितु मैडम के लिए। तो मैं स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर काम कर रहा हूँ बच्चों। कचरा प्रबंधन पर इस समय मैं काम कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में निकट भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बीच में आने वाली है। वो कौन सी समस्या हमारे बीच में आने वाली है मैं 2 मिनट में बता दूँ। अखिलेश मिश्रा सर ने मुझे जो है 5-6 मिनट सिर्फ दिए हैं, तो 5-6 मिनट में मैं अपनी पूरी बात मिश्रा जी बता देता हूँ। एक बड़ी समस्या हमारे बीच में राजीव बिछारिया जी आने वाली है, वो आने वाली है ई कचरा की। ई कचरा की एक बड़ी समस्या आने वाली है। विश्व के 5 देशों में ई कचरा जो उत्पन्न हो रहा है, उस 5 देशों में तीसरा नंबर हिंदुस्तान का है। तीसरा नंबर हिंदुस्तान का है और हम इतना ज़्यादा ई कचरा उत्पन्न कर रहे हैं मेरे बच्चों। आपको अंदाज नहीं होगा कि हम लोग प्रतिदिन कितना कचरा उत्पन्न करते हैं। मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि झांसी में हम लोग सिर्फ कितना कचरा उत्पन्न करते होंगे? अकेले झांसी में इनमें से कोई बता सकता है कितने कचरा उत्पन्न होता होगा झांसी में? मिश्रा जी, कितना कचरा होता होगा? अंदाज बताओ, कोई भी अंदाज बता दो। 1 टन, 2 टन, 100 किलो, 5 किलो, 50 किलो, कोई भी एक अंदाज किसी का हो। पांचाल जी जानते होंगे सिर्फ इस बात को। मैं बता दूं, झांसी में सर हम लोग 320 टन कचरा उत्पादित करते हैं प्रतिदिन। 320 टन। आप तमाम शहरों में जाते होंगे और तमाम शहरों में कचरे के पहाड़ आपको दिखाई देते होंगे नीता मैडम, लेकिन आपको झांसी में वो कचरे के पहाड़ दिखाई नहीं देते। हम 320 टन कचरा उत्पन्न करते हैं, आप लोग भी समझ लीजिए बात को। तो वो कचरा झांसी का जा कहाँ रहा? या तो हम रिसाइकिल कर रहे हैं और रिसाइकिल हम उस कचरे का कर नहीं रहे, रीयूज हम सर उस कचरे का कर नहीं रहे। एक्चुअल में झांसी में वो कचरा इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि झांसी में लैंडफिल साइट बहुत है, गहरे गहरे गड्ढे बहुत हैं। अब पत्थर निकाल रहे हैं, कांस्टेबल साहब बैठे हैं दरोगा जी, ये जानते हैं क्योंकि ये पूरे बड़े गांव में और पूरी झांसी में भ्रमण कर रहे हैं। तो हम लोग उस जो लैंडफिल साइट है वहाँ पर हम कचरा गुरुजी डालते चले आ रहे हैं। और मैं बता दूं, जहाँ पर कचरा सर डलता है वहाँ के धीरे धीरे की भूमि का जो है जो पानी होता है वो खारा होते चला जाता है। झांसी के कई स्थान हैं, मैं बता दूं आपको। यदि आप लोग जाएंगे सीपरी बाजार में, मसीहागंज में, आप लोग में से कोई मसीहागंज में यदि बच्चा रहता होगा तो वो इसको जानता होगा कि वहाँ का पानी और यहाँ के पानी में कितना अंतर होता है, कितना खारा है। खैर वो बात किसी दिन विस्तार से होगी। इतना मतलब है हमारा कि हम कचरे को कम से कम उत्पादित करें, कम से कम उत्पन्न करें। कचरे पर बोलने के लिए मैं सर से कहूँगा, एक दिन सेक्रेटरी सर से एक आधा घंटे का 1 घंटे का समय मुझे दिला दीजिए, तब मैं कचरे की बात करूँगा। आज चूँकि लैंप लाइटिंग का अवसर है, मैं सभी को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नर्स की भूमिका के विषय में जितना बोला जाए उतना कम है। कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने देख लिया, हम लोग सिर्फ देवता जो है डॉक्टर को मानते थे, लेकिन आप यकीन मानिए ये देवी है नर्स। 50 उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको, 50 उदाहरण में दे सकता हूँ आपको। जब कोरोना काल में सब लोग अपने अपने घर में बंद हो गए थे, कई डॉक्टरों में भी मैं एक बात बता दूँ, पूरे झांसी में किसी से पूछ लो, यदि कोरोना में कोई डॉक्टर नहीं डरा तो मैं बता दूं अपने डॉक्टर DN मिश्रा से। काय का मास्क और काय का क्या लाओ, कोरोना है, खांसो, आला लगाया और डॉक्टर साहब रात दिन मरीजों की जान बचाने। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया, गुरुजी जानते हैं इस बात को, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया, वास्तविक रूप में कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब एक ऐसे प्राणी थे, परमपिता परमेश्वर ने उनको ऐसा आशीर्वाद दे के रखा था कि 24 घंटे जो भी मरीज आया उन्होंने मरीज को भगाया नहीं। कोरोना, अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं प्रतिदिन कोरोना में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आप लोग जब गूगल पर डालेंगे डॉक्टर जितेंद्र तिवारी तो आपको आ जाएगा कि कोरोना में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और 21,000 कोरोना सेनानी और सेनापतियों का मैंने उत्साहवर्धन किया, जिसमें पुलिसकर्मी रहे, जिसमें डॉक्टर रहे, जिसमें नर्स रही, जिसमें सफाई कर्मचारी रहे। तो मेरा बड़ा नज़दीकी से नाता है नर्स से और डॉक्टर से, उन दिनों रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब को देखता था, कोई भी मरीज डॉक्टर साहब के पास भेज दो
कितना भी घातक रहे, कितना भी बीमार रहे, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया। तो इसी तरीके से तमाम नर्सें भी मेरे पास हैं जिनके उदाहरण कई, एक नर्स, अभी मैं पढ़ रहा था कि एक नर्स का बच्चा एडमिट रहा कोरोना से पीड़ित, और वो नर्स अपने बच्चे को देखती थी और पेशेंट को देखती थी, और दुर्घटनावश उस नर्स का बच्चा काल के काल में समा गया, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। तो वास्तव में जो है, मैं ये 16 आने सच है कि बच्चों आप लोग जो है, जितनी बिटिया सामने बैठी हैं वो एक देवी का रूप बनने वाली है। जब मरीज भर्ती कोई होता है, जब मरीज कोई भर्ती होता है और जब आप लोग उसके पास जाते हैं तो उसको देवता और देवी आप सब लोगों में नजर आते हैं। तो मेरा इस मंच के माध्यम से यही कहना है कि बिना भेदभाव के, बिना इस बात की तनख्वाह के कि हमें तो यहाँ तनख्वाह कम मिलती है, हम तो पेशेंट को कस के इंजेक्शन छूट देंगे, प्यार से उसका इलाज करना होगा। और इस संस्था में मैं बता दूं, नर्सिंग के अलावा भी तमाम व्यवसाय हैं। लोग फार्मेसी कर रहे हैं, लोग बीएड कर रहे हैं, ऋतु मैडम फार्मेसी की फैकल्टी हैं, और तमाम लोग जो है, और कोई किसी से कम नहीं है। अब ये भी नहीं, और व्यवसाय के भी विद्यार्थी बैठे होंगे और जो फैकल्टी बैठी होगी, प्रजापति घबराने नहीं कि ITI के किसी काम के नहीं बचे। सबकी अपनी अपनी भूमिका है गुरुजी, सबकी अपनी अपनी समाज में भूमिका है। एक बार मैं बता दूं आपको, सर सुनना है तो गौर से मैं बता दूं, एक बार जो है नीता मैडम, पांचाल जी, मैं बता दूं एक बार की बात, मैं कह रहा था ना, सबकी समाज में अपनी भूमिका है और किसी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। एक बार एक संत, मैं कई बार ये कहानी सुना चुका हूँ, बहुत बार सुना चुका हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं भरता जब मुझे बच्चे मिल जाते हैं। नीता मैडम, तो मेरी कोशिश होती कि इस कहानी को सेक्रेटरी सर मैं बार बार सुनाऊँ। एक बार सर जो है, एक कौवा पेड़ पर बैठा था, इधर है ना, कौवा एक पेड़ पर बैठा था, और कौवा पेड़ पर बैठा था और एक संत वहाँ से निकल रहे थे, और संत जब वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि पानी की बूंद उनके गाल पर पड़ी, उनके गाल पर पड़ी पानी की बूंद। तो संत ने जब ऊपर देखा तो एक कौवा रो रहा था, कौवा रो रहा था। संत ने कौवा को बुलाया, बोले भैया रो क्यों रहे, बात बताओ मैं। तो कौवा बोले महाराज बड़ी मुश्किल की बात है, हम अपने जीवन से परेशान हैं। क्यों परेशान हो? बोले महाराज हम इसलिए परेशान हैं कि हमारा भी कोई जीवन है। यदि किसी की छत पर बैठ के हम 4-5 कौवे आपस में वार्तालाप करें, टॉकिंग विद ईच अदर, तो लोग पत्थर मार के उड़ा देते हैं, लोग पत्थर मार के उड़ा देते हैं, पत्थर समझाते हैं हमें देख के। और उदाहरण भी देते हैं किसी को देख के, तुम तो इतने कर जाओ जितना कौवा। तो बोले साहब हम तो जीवन हमारा व्यर्थ है, किसी लायक नहीं है। और साल भर में 2-4-5 दिन का मौका हमें श्राद्ध में मिलता है, जब लोग हमें डूब के झूठा भोजन खिला देते हैं, उन दिनों के लायक हैं हम। तो हमें प्रभु जो है, हमारा जीवन अंत है, हमें तो कौवा से हमारा जीवन मैडम दूसरा दे दो, दूसरा जीवन दे दो। तो महाराज ने कहा कि तुम चाहते हो क्या बनना? बोले प्रभु हंस बना दो, हंस बना दो। सुन लो बच्चे, बच्चे सुन लो ना, बीच में मैं कुछ भी लूँगा, क्या कहानी सुनाई थी, मुझे हंस बना दो। तो महाराज ने कहा कि अच्छा चलो एक काम करो, तुम हंस के पास चलो, यदि हंस सुखी हो तो तुम हंस बन जाना। अब कौवा गया हंस के पास, और वो महाराज जी भी संग में चले गए। हंस से बोले कि हंस, ये कौवा कह रहा हमें हंस बना दो। हंस निकल के आ गया पानी में से, बनना नहीं मर जाओगे। क्यों? अरे बोले हम भी कुछ है क्या, सफ़ेद रंग हमारा, कफन जैसा रंग, पानी में तैरते हैं, लोग फोटो खींचते हैं, पता ही नहीं चलता पानी की खींच रहा है कि हमारी खींच रहा है। बोले फिर? अरे बोले उसके हमें नहीं बनना है। तुम भी बदलना चाहते हो जिंदगी? हाँ, क्या बना दें तुम्हें, क्या बना दें? हंस बोला महाराज यदि बनाने ही है हमें तो हमें तोता बना दो, पैरट बना दो, क्या ग्रीन कलर बेहतरीन। चलो दोनों लोग, कौवा हंस महाराज तीनों लोग चल गए। मिश्रा जी 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ मैं। समझ जाते ना, आयोजक के पास काम बहुत रहता है और कोई बीच में हम जैसा वक्ता फंस जाए तो मुश्किल होती। दोनों लोग, तीनों लोग चले गए पैरट के पास। अब पैरट को ढूंढने लगे जंगल में, आधा 1 घंटा तक पैरट को ढूंढते रहे, तोते को ढूंढते रहे, तोता नहीं मिला। तीनों थक के बैठ गए। ऊपर पेड़ पे से तोता बोला मिट्टू मिट्टू, अरे तुम यहीं छुपे थे यार, हम लोग तो आधा घंटे से ढूंढ रहे थे। बोले जी यहाँ गए हमारा, इतने हम हरे और इतना हरा जंगल कि कोई हमारे माता पिता रिश्तेदार ढूंढने आते तो मिलते ही नहीं है, बड़ी जिंदगी खराब।
तो बोले तुम जिंदगी से सुखी नहीं हो? बोले बहुत परेशान है राजी, बहुत परेशान है। बोले फिर? बोले हमें तो हटा दो। और क्या परेशानी है? बोले और परेशानी ये है कि यदि हम थोड़े से सुंदर से दिखने लगे, अच्छा क्यूट सा बच्चा हमारा पैदा हो जाए, तो लोग पकड़ के पिंजरे में घुसेड़ देते, और रोज हमें भूख लगे चाहे नहीं लोग मिर्ची खिलाते। तोता भी परेशान अपनी जिंदगी से, चलो आगे। तोते से कहा क्या बनना? तोता बोला कि महाराज मोर बना दो, राष्ट्रीय पक्षी मोर, पिकॉक बना दो सर। सब लोग चल दिए सेक्रेटरी सर। पिकॉक बढ़िया अपना आराम से घूम रहा था, डांस कर रहा था, खुश हो गए सब लोग। पिकॉक को बुलाया, यार तुम्हारी जिंदगी बहुत शानदार है, तुम्हारी जिंदगी बहुत शानदार। कैसे? अरे यार नाचते हो, दुनिया लोग घंटों कैमरा लेके खड़े रहते कि तुम जैसे नाचो और हम तुम्हारी फोटो खींचे। अब पिकॉक का जवाब सुनिए। पिकॉक ने कहा अरे भाड़ में जाए ऐसी जिंदगी। बोले फिर? बोले हमें नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? बोले तुम बात समझो, अगले पल का भरोसा नहीं है। शिकारी आता है, पंख नोच ले जाता है, जैसे तैसे हम पंख बढ़ाते हैं और कोई भी पंख नोच ले जाता है, और फिर बड़ी मुश्किल में हम जो है अपने पंख बढ़ा पाते हैं। फिर? बोले मैं भी प्रसन्न नहीं हूँ। अब बोला पिकॉक से महाराज ने कि तो तुम्हें क्या बनना? बोले हमें कौआ बना दो। हंस बोला हमें कौआ बना दो। बोले कौआ क्यों बना दो? बोले कौआ बन जाए, ना मरने का डर, ना मारने का डर, ना कोई पकड़ेगा, ना कोई काट के खाएगा। तो इसी तरीके से इस कहानी का सारांश ये है कि जैसे आप हैं वैसे बने रहें। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा बनाया, हमें अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। जिस परिवार में हमने जन्म लिया, जिस परिवेश में हम रहे, जिस खानदान में हम पैदा हुए, जिस धरती पर हमने जन्म लिया, वो सब अच्छा है। जो व्यवसाय हमने चुना वो सब उत्तम है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए चेयरमैन सर का देता हूँ। तमाम स्कूल कॉलेजों में जाता हूँ, लेकिन जो खुशी मुझे मैडम इस संस्था में आके मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। उसका कारण ये है कि इस संस्था में 2017 से मैंने 2007 से 2017 तक काम किया। मैंने लगातार हम लोग काम करते रहे संस्था में, तो ऑटोमेटिक मुझे जो है बहुत लगाव है। और अब भी जब मैं निकलता हूँ इस रोड से कहीं जाने के लिए, तो मुझे बड़ा अपनेपन का बहुत एहसास होता है। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब यहाँ से मुझे कोई अवसर मिलता है मुझे यहाँ आने का। तो मैं चेयरमैन सर को, आदरणीय श्री विद्यानिधि मिश्र जी को, इनके आदर्शों पर, इनकी बात हो सकता है जो कर्मचारी हो क्षणिक इनकी बात बुरी लग सकती है, सर कह रहे बताओ नहीं, लेकिन यदि कोई वास्तव में उसको मनन करेगा, चिंतन करेगा, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। उसका मैं जो है जीता जागता सीधा उदाहरण हूँ। मैंने इस संस्था में 2-4-5 हज़ार रुपये की नौकरी से स्टार्ट किया। आज ऊपर वाले की कृपा से, सर के आशीर्वाद से आज 150-200 कर्मचारी मेरे पास काम कर रहे हैं। कभी मैंने सोचा नहीं था। लगातार निरंतर काम करने का ये परिणाम मिला हमें। और सर 2 मिनट और समय मिल जाएगा? दे रहे कि नहीं? हाँ। तो एक कहानी में और, चूँकि ये बात चल पड़ी निरंतर काम करने की बात चल पड़ी, तो मैं इसमें और 2 लाइन की एक बात सुनाना चाहता हूँ कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये काम होगा या नहीं होगा, हमें निरंतर लगे रहना चाहिए। पांचाल जी एक बार की बात बताऊँ मैं, एक बार जो है राजीव पिछाड़िया जी, सुन लीजिए बात को। एक बार इंद्र देवता किसानों से नाराज हो गए। बच्चों बहुत अच्छी स्टोरी है, प्रधान जी सुन लो पीछे से। एक बार इंद्र देवता जो है किसानों से नाराज हो गए ऋतु मैम, इसलिए कि हमें काम करते रहना चाहिए, हमें ये नहीं नीता मैम समझना चाहिए सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। इंद्र देवता एक बार सर नाराज हो गए कि सर, और उन्होंने सेटिंग मिलाई शंकर जी से, और उन्होंने कहा कि अब हमें बारिश नहीं करना है, किसानों को सबक सिखाना है गुरुजी, अब हमें बारिश नहीं करना है। और शंकर जी से बात करें कि अपन 12 वर्ष तक बारिश नहीं करेंगे, तब किसानों को समझ में आएगी। किसान इंद्र देवता की पूजन नहीं कर रहे थे। अब हाहाकार मच गई और सारे किसान इंद्र देवता के पास आए और इंद्र देवता से कहा कि प्रभु बारिश कर दो। तो बोले हम तो तैयार हैं, यदि शंकर जी कर दें, अपना शंकर जी डमरू बजा दें, हमें कोई एतराज नहीं है। सब किसानों का तो हम शंकर जी के पास जा रहे हैं।
अच्छा शंकर जी के पहले सेटिंग में डाली थी कि जी आएंगे, लेकिन कल अपन लोग जैसे कॉलेज में करते थे ना, सेक्रेटरी सर से कह देते थे सर मानना नहीं, ऐसा कहा ठीक है हम लोग। तो सब जब किसान वहाँ पर गए गुरु जी, तो शंकर जी तो पहले से बैठे थे। शंकर जी नहीं बारिश आरिश कुछ नहीं हो पाएगी, जाइए चलिए बाहर निकलो। और शंकर जी ने उनको किसानों को बाहर निकाल दिया। तो सब लोग जो है विनोद तिवारी जी सब लोग बड़े चिंतित हो गए, अब बारिश नहीं होगी। और सब लोग अब मैडम अपने अपने स्थान पर बैठ गए, कांस्टेबल साहब सब लोग बैठ गए अपने अपने स्थान पर। एक जो है किसान जो था उसने लगातार वो हल जोतता रहा। उसने कहा भैया बारिश हो या ना हो हम तो लगातार हल जोतेंगे। और वो हल जोतता रहा। जब अन्य किसानों ने उससे पूछी कि जो बताओ तुम हल क्यों जोत रहे हो, बारिश तो होना नहीं है, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? बोले देखो ऐसा है, हम तो इसलिए जोत रहे हैं कि ऐसा नहीं हो 12 सालों में हम हल चलाना भूल जाएं। अब किसान बोले यार बात तो ठीक कह रहा। तो कुछ किसान उसके संग जो है सर वो भी हल जोतने लगे। जब वो हल जोतते रहे तो उनको मोरों ने देखा, पिकॉक मोर ने कहा भैया तुम लोग क्या कर रहे हैं जब बारिश नहीं होना? तो बोले हम इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा ना हो हल चलाना भूल जाएं। तो मोरों ने मीटिंग की कि ऐसा नहीं हो यार, हम जो है नाचना भूल जाए, हमें भी नाचना चाहिए। अब मोर भी नाचने लगे। अब मोर भी नाचने लगे तो जब आप मेघों को पता चली तो मेघों ने कहा मोरों से भैया बारिश होना नहीं है, हम बरसेंगे नहीं, किसान खेत जोत रहे, सब एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जब मोरों ने कहा कि भाई साहब हम इसलिए कर रहे हैं कि हम नाचना ना भूल जाए, तो मेघों को लगा कि ऐसा ना हो हम गरजना भूल जाए। अब मेघ भी जो है गरजने लगे। जब मेघ गरजने लगे तो ये बात देख रही थी माता पार्वती। और माता पार्वती ने कहा कि भैया जैसा हो क्या रहा? बोले ऐसी ऐसी बात है, पूरी घटना बताई। माता पार्वती फट पहुंची शंकर जी के पास। वो शंकर जी से उन्होंने कहा कि प्रभु, बोले हाँ, बोले ऐसे ऐसा पृथ्वी लोक पर बात हो रही। तो शंकर जी कहने होने दो। बोले हम तुमसे ये कहने आए कि ऐसा नहीं हो तुम 12 सालों में डमरू के जाना भूल जाओ। शंकर जी ने की बात तो सही कही यार, उठाया डमरू दन 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 बजा दिया, बारिश हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमें लग भी रहा, हमें लग रहा कि वहाँ सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन हमें निरंतर अपने कार्य को करते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत सर का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में बहुत ही जागरूक जानकारियाँ एवं जिसे हम कह सकते हैं मोटिवेशनल थिंग्स सर ने हमें बताई। और कार्यक्रम के जी सर एक मोटिवेशनल चैनल है हमारा, जब आप YouTube के बारे में क्या डालेंगे मोटिवेशनल स्टोरी बाई डॉक्टर जितेंद्र तिवारी, तो सारी स्टोरी आ जाएंगी। तो उसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है कि आप सभी ने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए हैं। अब मैं अनुरोध करूंगी चेयरमैन सर से, सेक्रेटरी सर एवं ट्रेजरर सर से कि कृपया वे हमारे चीफ गेस्ट एवं गेस्ट ऑफ ऑनर का स्वागत करें एवं अभिवादन करें। प्लीज सर कृपया मंच पे आ जाएं। दिस इज द स्मॉल थैंक यू गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। Thank you so much. Now I would like for managing your schedule to witness this event with us. The vote of thanks for the evening. Before proposing the vote of thanks, I would like to announce that all staffs and students are requested that after vote of thanks, we will be having a group photo. So please be ready. And finally, good evening again to all ladies and gentlemen present here. I stand here proud and grateful on behalf of this institute to express my heartfelt thanks to all of you. I would like to start by thanking Almighty God for His blessings. I am thankful to our chief guest and guest of honor who delighted us with their kind and inspirational presence in this event despite of their busy schedule. I am thankful to all the guests arrived here who have taken time out of their busy schedules to grace this occasion and making this event more sparkling and joyful. I would like to thank our management, Chairman Sir, Secretary Sir, Treasurer Sir, and other management members for their blissful presence and unwavering support, which has been instrumental in our growth and development throughout our journey in this college. I would like to express my gratitude to our principal,
Dr. Neeta Singh ma'am, under the guidance of whom we are able to execute and taste every piece of success. I am heartily thankful to my colleagues, faculties for your active participation to make this event a grand success. I am thankful to each and every member of the SVGL family for your unconditional support and motivation. My loving, cheerful thanks to all our students, since your presence and performance dignifies our devotions. And my sincere thanks to all the parents who came here and added bliss to this event with their supporting presence. I would like to thank the arrangement and catering team also to make this event a grand success. In conclusion, I would like to say that this event would not have been possible without the support and hard work of each and every one of you. On behalf of the department, my sincere thanks to all of you. I hope you all enjoyed the event a lot. Wishing you a great evening. Thanks to all. डिग्नेटरीज कृपया मंच पे आ जाएं और जितने भी बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड हुए हैं वो प्लीज स्टेज पे आ जाएं एक ग्रुप फोटो के लिए। एक छत से खींच आओ। बेटा